Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Okay, what we discussed in last lecture? Sir, example of normal vectors and tangent vectors. Yes, okay. In last lecture, we have discussed the examples of the normal vector, okay, tangent vector. Then we discuss about the velocity vector and acceleration vector, and also do some example for the, also done some example for the component of the velocity vector and component of the acceleration vector. Is it okay, everybody? Yes, sir. Okay. Now today we are going to discuss next part of our unit, that is the related to point function. Okay, means field point function, scalar point function हो सकता है, vector point function हो सकता है, and from that concepts we define three different things. Okay, so I am going to discuss about the field point functions, different kind of function in vector calculus. So is it visible to everybody? This is the presentation of the last lecture. Yes, sir. Most of the examples we have done. Okay, and this is the fourth day. Okay, so I am going to discuss about it. Yes, you can see what is the definition of the field. So vector में field कैसे define करते हैं? So you can see if a function is defined for every point of region of the space, then that region is called a field. मीन्स अगर आप स्पेस में कोई रीजन दे रहे हो और जो भी फंक्शन है वो रीजन के हर एक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड होता है, देन यू कैन से दैट दैट रीजन इज नोन एज द फील्ड. ओके, अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है. ओके, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे है ना, क्या है, स्टेट्स है. ओके, तो फॉर एग्जांपल ये हमने रीजन 1 लिया, रीजन 2 लिया, रीजन 3 लिया. तो हर एक ये जो फंक्शन है, ये रीजन में जो फंक्शन है एफ, वो हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन कर सकते हो, है. देन यू कैन से दैट इट इज नथिंग बट द फील्ड. ओके, क्लियर? Yes, sir. Okay, now point function. Next is the point function. So function whose value at any point in a region of the space depends on the position of the point is called a point function. अब हमको पता है कि हम ज़्यादातर किससे डील करते हैं, पोजीशन वेक्टर से करते हैं कि नहीं, हर बार से? Yes, sir. हाँ, तो वो रीजन का कोई एक पॉइंट जो है उसके लिए फंक्शन की जो भी वैल्यू होगा, दैट मीन्स अ फंक्शन whose वैल्यू एट एनी पॉइंट इन अ रीजन ऑफ द स्पेस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, मीन्स उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड है पॉइंट की, देन इट इज कॉल्ड द पॉइंट फंक्शन. ऐसा जो फंक्शन है उसको हम पॉइंट फंक्शन बोलेंगे. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, मीन्स जो फंक्शन है वो टोटली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द रीजन, देन यू कैन से दैट इट इज द पॉइंट फंक्शन. सो आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट. इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No, sir. Okay, so there are two types of the point functions. Number one, scalar point function, and number two, the vector point function. Means वो scalar में भी हो सकता है या फिर vector में भी हो सकता है. Now using these two concepts, we can define next most important टॉपिक. इट इज़ द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और उससे हम ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे. ओके, सो टू डिफाइन ऑल दीज न्यू क्वांटिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन. तो स्केलर पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन दैट असाइन अ नंबर और अ स्केलर phi of x y z to each point x y z of some region R of the space is called a scalar point function. मीन्स जो फंक्शन है वो कोई एक नंबर असाइन करे
और वो नंबर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, ओके। और वो पॉइंट कहाँ से लेना चाहिए हमको, रीजन आर से। तो जो ये फंक्शन है, अगर उसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, देन यू कैन से दैट इट इज नोन एज द स्केलर पॉइंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसे लिख दिया कि फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर। सो दिस point function represent the scalar value, so you can say that it is the scalar point function, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी i j k इस डायरेक्शन नहीं है, so you can define as the scalar point function. Okay everybody? Yes. Everybody understand? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, same way, if the function if function defines the vector point, then you can say that it is the vector point function. That means a function that assigns a vector v bar is equal to v bar x y z to each point x y z of some region R of the space is called a vector point function. एंड हियर आर इज नोन एज दी वेक्टर फील्ड। देखो यहाँ पे जो आर होगा वो क्या होगा, टोटली स्केलर मीन्स रिजिड टाइप होगा, ओके, फिक्स होगा। और यहाँ पे जो है वो फील्ड भी वेक्टर होगा और अकॉर्डिंगली जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो भी वेक्टर फॉर्म होगा, ओके। सो दैट मीन्स वी बार इज इक्वल टू वी बार एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस 2z स्क्वायर जे प्लस एक्स स्क्वायर के, विच इज डिफाइंड एज द वेक्टर फील्ड। ओके एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. What Yes, about sir. others? Okay. Then next, okay, this is very important operator for the vector calculus. The vector differential operator is defined by del. इसको बोला जाता है del या फिर nebula, दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हो। That means del and defined as del. This is the operator. Operator means क्या होता है कि वो किसी के ऊपर ऑपरेट कर सकते हो। That means if you want to operate on f, then you can write del f. If you operate on g, then you can define for the del g. ओके, सो ये जो है ऑपरेटर है। ऑपरेटर मीन्स क्या करता है, कोई फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है। अंडरस्टैंड? ओके, Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसलिए वो वेक्टर फॉर्म में होगा। सो डेल इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल वाई के। अब ये जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसकी हेल्प से हम मेन फेमस जो क्वांटिटी है, मीन्स फेमस जो 3 थिंग्स है वो डिफाइन करेंगे। नंबर 1 इज द ग्रेडियंट, number 2 is the divergence, and number 3 is the curl, which are useful in our day-to-day life and in your branch also. Okay, so gradient, divergence and curl we will define by using the vector differential operator. Okay everybody? Yes, sir. Okay, the first one is gradient. So gradient क्या होता है? So for the given scalar function phi of x y z, the gradient of phi is defined by grad phi. उसका सिंबल दो है, grad of function phi, और उसको del into phi, ऐसे भी आप लिख सकते हो। That means dot product with the phi. Okay, it's del into phi. So grade of phi is equal to grade into phi. तो अब ये डेल यहाँ पे हम रिप्लेस करें तो यहाँ पे देखो सिंपल है, उसको डिफाइन करना बहुत ही सिंपल है। सो डेल हमारा क्या है, सो डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के। ओके, अब ये किसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं, फाई के ऊपर। तो जो डिफ्रेंसिएशन है उसके साथ फाई आ जाएगा, तो इसका सीधा डेफिनेशन हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, किसका करना है, फाई आई के, प्लस डेल बाय डेल वाई, किसका करना है, फाई का, जे, प्लस डेल फाई बाय डेल जेड इंटू के। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेडियंट। अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. एंड यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो ये फाई जो है वो ऑलवेज ग्रेडियंट के लिए क्या ले सकते हैं हम, स्केलर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए। जब स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो अगर आप ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड
फंक्शन का डॉट करते हो, जो भी मुझे मिलेगा दैट इज नोन एज द ग्रेडियंट। ओके, अगर यहाँ पे वेक्टर फंक्शन हो गया देन इट गिव्स अस डाइवर्जेंस। ओके, वो भी हम देंगे। तो जब स्केलर फंक्शन है तभी हमको ग्रेडियंट मिलेगा। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, not. So these are the nots for the gradient. So the gradient of a scalar field del phi is a vector function. तो अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया हो तो इसका जो आंसर आया वो किस में आया? वेक्टर में आया, स्केलर में आया? ये वेक्टर है या स्केलर है ये आंसर में? Vector, sir. Vector. Vector. Okay, so you can say that it is also the vector function. Done? Understand first note? Yes. Okay, and Yes, sir. geometrically क्या होता है? So geometrically it indicates the normal to the surface. That means the gradient of phi is also known as normal to the surface phi of x y z is equal to c, where c is any constant. Means अगर कोई आपके पास ऐसे सरफेस है, ओके, तो सरफेस का नॉर्मल इस हिसाब से होता है, उसका टेंजेंट इस हिसाब से होता है। ओके, सरफेस के लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट के लिए अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर एन बार। तो जब सरफेस की बात कर रहे हो तो सरफेस में जो भी हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे इट रिप्रेजेंट्स योर नॉर्मल वेक्टर एन बार। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. आगे जो हमने नॉर्मल वेक्टर फाइंड किया वो किसके लिए था? वो कर्व थियरी के लिए था। जब सरफेस में हम जाएंगे तो सरफेस में जो ग्रेडियंट होगा इट गिव्स अस द ग्रेडियंट। ओके, डन? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे दूसरी बात बताना है कि एग्जाम्पल दो टाइप के यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड करके फाई आपको दे दिया जाए, एंड सेकंड थिंग कि आपको ऐसा बोला जाए कि फाइंड द नॉर्मल टू द सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको दोनों केस में ग्रेडियंट ही फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड ग्रेडियंट ओनली। ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. और कभी कभी आपको मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो मैक्सिमम कब होता है? जब उसका मॉड्यूलस ले लेंगे तब वो मैक्सिमम दे देगा। डन? ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. So there are three types of example. Simple, find out the gradient. Number two, find out the normal, and third, maximum. Okay, so we go first for the first example. Find the gradient of the surface phi is equal to 4xz cube minus 3x square y square z at point 2 minus 1 2. Okay, चलो फाइंड करते हैं इसको। Okay, so what is your statement? किसी को याद रहा क्या था स्टेटमेंट? तो मिलेगा? नहीं याद रहा है ना? फाइंड द gradient of a surface phi is equal to 4xz cube minus 3x square y square z at point 2 minus 1 2. ओके, तो ये किसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बताएगा मुझे स्टेप्स बाय स्टेप्स कोई बता सकता है? एनी आइडिया? गेस तो लगाओ, कुछ तो सोचो। नो गेस? सर पहले हाँ यस बोलो सर। सर पहले वो हमने डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड करना है। फिर उसके अंदर एक्स वाई जेड के सारे पॉइंट्स डाल देना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो जैसे ईसा ने बताया ऐसे डेल फाई फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको स्टेट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी हैव सरफेस
कौन सा सरफेस दिया है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों है ना एक्स वाई जेड इसमें, ये सुनो। यस सर, यस सर। तो उसको फाई ऑफ एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। सो 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ओके, सो दिस इज माई फाई ऑफ एक्स वाई जेड। अब फाई ऑफ एक्स वाई जेड मेरे पास है तो सीधा मैं क्या लिखूंगा उसको, देयरफॉर डेल फाई इज इक्वल टू, उसकी डेफिनेशन क्या है, डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे प्लस del phi by del z k. Now you have to simply write down here phi. Okay, so what is my phi? 4x z cube minus 3x square y square z into I cap. Okay, as it is plus del by del y of, यहाँ पे फाई क्या है मेरे पास, 4x z क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ओके, और उसके साथ आएगा जे के। ओके, प्लस थर्ड वन डेल बाय डेल जेड ऑफ 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इंटू के कैप। ओके, सो दिस इज अवर थर्ड कॉम्पोनेंट। सो हमने यहाँ पे सिर्फ फाइव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। इज इट ओके? Is it okay, everybody? Yes, sir. Okay. Now you have to find the partial differentiation of this term with respect to x. So how we can find it? 4x z cube का with respect to x differentiation क्या मिलेगा मुझे? 4z cube. तो as it is रहेगा, x का 1 हो जाएगा। Okay, everybody? Yes or no? Yes, sir. यस सर। ओके, माइनस यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x वाई स्क्वायर जेड, Square z. यस, इंटू आई कैप प्लस यहाँ पे फिर से विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो 4x जेड क्यूब में y है ही नहीं, तो सीधा 0 हो गया, माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई इंटू जेड इंटू जे कैप। ओके, प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस वन, तो यहाँ पे अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये हो जाएगा 12x जेड स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू के कैप। यस और नो? Yes, sir. एवरीबडी, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, नो सर। सो दिस इज अवर ग्रेडियंट ऑफ दी फाइव। अब कौन से पॉइंट के लिए फाइंड करना है, 2 माइनस 1 2, सो क्या हो जाएगा, देन डेल फाई एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया है, 2 माइनस 1 2, सो 2 माइनस 1 2 पे हमको फाइंड करना है। यस, 2 माइनस 1 2, तो एट पॉइंट 2 माइनस 1 2 मीन्स क्या होगा, यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x एज 2, y as -1 and z as 2 in the above expression 1. Yes or no? Understand? Yes, sir. So यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 इंटू जेड क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 6 एक्स मीन्स क्या होगा, 2, वाई स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर एंड जेड मीन्स 2। ओके, इंटू यहाँ पे हो जाएगा आई कैप माइनस यहाँ पे होगा आपका 6x स्क्वायर मीन्स मेरे पास क्या होगा 2 स्क्वायर, y मीन्स हो जाएगा मेरा -1, z मीन्स मेरा हो जाएगा 2 इंटू जे कैप प्लस यहाँ पे मुझे मिलेगा 12, x मीन्स हो जाएगा 2, z मीन्स हो जाएगा 2 स्क्वायर यहाँ पे। ओके, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर and y square means -1 square into k cap. So is there any doubt question in this step? Anybody? Any doubt? No, sir. What about others, please? No doubt, sir. Okay, अब देखो ये कितना होगा टोटल बताओ, चलो यहाँ पे 2 क्यूब मीन्स 8, 8 इंटू 4
32 माइनस यहाँ पे करते हैं, चलो ये तो -1² दैट मीन्स +1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 6 जा 24, यस दैट मीन्स आई के माइनस यहाँ पे देखो तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 48 जे हो जाएगा एंड यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, तो यहाँ पे होगा 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 4 96 श्योर Yes, sir. 96 माइनस यहाँ पे -1² दैट मीन्स +1 एंड यहाँ पे 4 3 जा 12, ठीक है ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो 32 माइनस 24 कितना मिलेगा मुझे, 8 आई, ओके ये हो जाएगा मेरा 48 जे और ये हो जाएगा मेरा 84, ओके सो 84 के। So this is your final required gradient at point 2 minus 1 2. Understand everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Yes, any sir. question in this example? Anybody? Out, sir. No, sir. Okay, तो यहाँ पे No, वही का वही सब कुछ लिखा हुआ है, देखो 8i plus 48j plus 84k वही का वही मिला ना हमको। So this is our required gradient. Now we go for the next example. Find the gradient of a surface phi is equal to 4x z cube minus 3x square y square z at point 2 minus 1 2. तो चलो इसको फाइंड कर दिए, दोनों में से कौन सा कर रहा हूँ, दोनों सेम ही है, नो सेम नहीं है, देखो पॉइंट चेंज है सिर्फ, अंडरस्टैंड, देखो Yes, sir. ओके। तो एक एग्जांपल मैं करवाता हूँ, एक एग्जांपल आपको होमवर्क का दे रहा हूँ, चलेगा, इज इट ओके? चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो यहाँ पे करते हैं एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ सरफेस phi is equal to 4x z cube minus 3x square y square z at point 2 minus 1 2. Okay, so how we can start this example? Again here given surface is phi of सर x, ये तो हमने आगे नहीं किया। आई थिंक कर दिया है ना, यही का यही है, हाँ यस कर दिया सर। यस 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 वी डन इट उसके एवरीबॉडी। नीचे वाला को हाँ नीचे वाला कर देते चल हाँ तो फिर सीधा यहीं पे चेंज करके लिख दे तो नहीं चलेगा, चलो ये आपको मैं दे रहा हूँ अभी, सिर्फ मुझे ये करना है डेल फाई एट -2 1 2, ओके Sir, value, sir, question अलग है, बीच में माइनस है इसमें। सॉरी सर क्वेश्चन में बीच में प्लस और माइनस का भी डिफरेंस है। हाँ प्लस और माइनस के भी है, लेकिन ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट वाला किया ना हमने, तो सिर्फ ये पॉइंट चेंज करके देख ले तो नहीं चलेगा, चलेगा। या करवाऊँ? सर फाइव, सॉरी बोलो ऐसा। सर वो फाइव जो है ना उसमें 4x z³ प्लस है, हाँ वो बोला ऊपर ना, में माइनस। हाँ उन्होंने बोला, हाँ ये अभी बताया मुझे उन्होंने, प्लस प्लस एंड माइनस से भी डिफर हो रहा है, लेकिन मेथड तो वही का वही हुआ ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसमें कुछ नया नहीं हाँ सर। था, डिफ्रेंसिएशन भी सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो माइनस था उसकी जगह प्लस आएगा, है ना। चलो इसी में करना है तो इसी में कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो बताओ मुझे, ये प्लस हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अंडरस्टैंड, यस और नो, Yes, sir. Yes. है ना। फिर से यस यस सर। प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, Yes. सो यहाँ पर भी प्लस,
यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस. नाउ यू कैन कैलकुलेट एट पॉइंट -2 1 2, है ना. -2 1 2 के लिए इसको कैलकुलेट करो. चलो और मुझे बताओ क्या होगा. तो यहाँ पे आपके पास रहेगा 32 + 24 i, और यहाँ पे जो माइनस था ये प्लस हो जा रहा था, वो वहाँ पे प्लस रहेगा, है ना. और प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे. यस. सो यू हैव द -48j आएगा, एंड यहाँ पे 96 + 12 आ जाएगा. ओके, इज इट ओके. सो प्लीज़ वेरीफाई इट. ओके, ये वेरीफाई तो कर सकते हो ना नाउ. Yes, Yes, sir. sir. है ना. सो प्लीज़ वेरीफाई फॉर दिस सेकंड एग्जांपल. ओके, आपको सेकंड एग्जांपल के लिए वेरीफाई करना है सिर्फ. ये दोनों एग्जांपल हमने कर दिए, सिर्फ वेरीफाई करना बाकी बचा. ओके एवरीबॉडी. Yes, Yes, sir. sir. ओके नाउ. Yes, sir. यस. ओके, नाउ वी गो फॉर द थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल करते हैं. तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड. You have to find the gradient. The function is different, so statement is also represented as different way. Okay, so next is if phi is equal to log of x square plus y square plus z square, then find del phi at point 1 0 -1. Okay, so this is your statement. You can see on your screen also. If phi is equal to log of x square plus y square plus z square, then find del phi at point 1 0 -1. Okay, so how we can start this example? Anybody? अगेन वहीं से स्टार्ट करेंगे. हियर phi of x y z is equal to log of x square plus y square plus z square. Okay. Yes, sir. Okay. Then write down the definition of del phi. So del phi is del phi by del x I plus del phi by del yj प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के. ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, यहाँ पे डेल फाई बाय डेल एक्स. हाँ, फर्स्ट में क्या था कि सिंपल तरीके से हो जा रहा था, इसलिए हमने साथ में लिखा था. बट इफ़ यू हैव द कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन देन यू कैन फाइंड सेपरेटली, जैसे ईसा ने बताया था ऐसे. ओके, सो हियर करके हम लिख सकते हैं डेल फाई बाय डेल एक्स पहले फाइंड करेंगे. सो डेल फाई बाय डेल एक्स मीन्स क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस क्या होगा, लॉग का क्या हो जाता है 1 1 अपॉन upon x square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ डेल बाय डेल एक्स ऑफ जो अंदर का बाकी बचा वो चेन रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा ना. ओके. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे इसका बाकी था, तो अब इसका करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ. चलो विद रिस्पेक्ट टू 2x. यस, वैल्यू 2x. 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज योर डेल फाई बाय डेल एक्स. नाउ you can think about the similarly. Okay, similarly del phi by del y क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली अगर लेना है तो 2y 2y by 2y upon x square plus y square plus x square plus x square plus y square plus z square, and same way del phi by del z. What we get? 2z by x by square plus y square plus X z square square. plus y square plus z square. Now we can substitute all these value in equation 1. Yes or no? Yes, sir. So from equation 1 del phi इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x अपॉन
x square plus y square plus z square into I cap plus 2y upon x square plus y square plus z square into j cap plus 2z upon x square plus y square plus z square into k cap. Okay, then yes or no? Yes, sir. Yes. Now we want to find the gradient at point 1 0 minus 1. So we start with that. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं gradient at standing line कौन सा point है 1 0 minus 1. Okay, so 1 0 minus 1 is equal to क्या हो जाएगा, you have to replace x by क्या होगा, x is equal to क्या replace करना है 1, y is equal to 0 and z is equal to minus 1. Understand everybody? Yes. Yes, sir. सो 2 into 1 हो जाएगा मेरा 2 डिवाइड बाय यहाँ पे 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस यहाँ पे 2 into 0 तो ये तो टोटली 0 हो जाएगा ना 1 प्लस 0 प्लस 1 जे प्लस ये थर्ड हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू के. So we have 2 by 2 that means 1 into I cap plus 0 into j cap minus 2 by 2 into k cap. So again we have the I minus k. Yes or no? Do you understand? Yes, Yes, sir. Okay, any question, any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, अब थोड़ा इससे थोड़ा हार्ड करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज लिटिल बिट हार्ड. If f of x y z is equal to x square plus y square plus z square e raised to minus square root of x square plus y square plus z square, then find the gradient of f. Okay, so we have the scalar function f. So यहाँ पे हम उसी से स्टार्ट करेंगे. If f of x y z is equal to x square plus y square plus z square into e raised to minus square root of x square plus y square plus z square. Okay, then find the gradient of f. Okay, so again we start with the function. So here f of x y z is equal to x square plus y square plus z square into e raised to minus square root of x square plus y square plus z square. Okay, now अब पहले स्टेट करूँ या न करूँ, लास्ट में स्टेट करूँ और फिर से उसमें सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो भी चलेगा कि नहीं, है ना? Yes, sir. है ना? तो थर्ड टाइप से मैं कर रहा हूँ. देखो उसके बाद सीधा इसका मैं फाइंड कर रहा हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स. सो व्हाट इज द डेल एफ अपॉन डेल एक्स फॉर दिस? सो यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स ऑफ यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना इंटू ई रेज टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखना है. ओके, नाउ टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, हाउ वी कैन फाइंड दिस डिफरेंशिएशन? Sir, u into v. यस, प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं. ओके, तो आई पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज. The differentiation of e will be as it is, so e raised to minus x square plus y square plus z square into differentiation of किसका बाकी बचा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का बाकी बचा कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ओके, प्लस अब e रेज टू वाला एज इट इज, सो e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर and the differentiation with respect to x of x square plus y square plus z square. So you can see here x square plus y square plus z square as it is
e raised to minus square root of x square plus y square plus z square as it is into, अब इसका क्या हो जाएगा, रूट का क्या होता है, माइनस तो ही, रूट एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, -1 upon 2 रूट एक्स होता है ना, -1 अपॉन 2 रूट एक्स, सो -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का बाकी है ना, गॉट इट एवरीबॉडी, ये पता चला कि नहीं, Yes, sir. okay, then e raised to minus square root of x square plus y square plus z square as it is, and the differentiation of this will be 2x, बाकी क्या दोनों का 0 हो जाएगा. So is there any doubt, any question in this step, anybody? सर. हाँ, yes. सर इधर बीच में माइनस नहीं आएगा. कहाँ पे? ये फर्स्ट स्टेप जो आपने दिया है ना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स के बाद वाला. डेल एफ अपॉन डेल एक्स के हाँ बाद. सर. हाँ हाँ सही. सर उधर ऊपर. ऊपर. हाँ हाँ सर उधर डेल अपॉन डेल एक्स के बाहर माइनस आएगा ना. हाँ, तो यहाँ पे लिखा ना मैंने, माइनस यहाँ पे है ना, प्रोडक्ट में आएगा वो, प्रोडक्ट में है ना. नो सर ये माइनस तो डेरिवेटिव का है ना, पर फॉर्मूला क्या रहती है, यू बी माइनस इंटीग्रेशन वी डी बी. नो, वो तो इंटीग्रेशन में होता है, डिफरेंशिएशन में तो प्रोडक्ट रूल हुआ ना ये. यस सर. तो माइनस नहीं आएगा वो, है. ये जो माइनस है इट कम्स फ्रॉम हियर, ओके, यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस रखा, दूसरा कहीं से माइनस नहीं आएगा, ओके. यस सर. Okay, now you can see here minus, 2 will be cancel out. Okay, so what is the common terms in both the terms? Common कौन सा बचेगा, ये वाला है ना. So e raised to minus square root of x square plus y square plus z square as it is. Okay, now what is the remaining part in first? So यहाँ पे minus x upon, sorry not upon, यहाँ पे आपके पास बचेगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2x. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर. Okay, so this is your del f by del x. Similarly, we can define del f upon del y. क्या मिलेगा del f upon del y? सर ये कॉमन टर्म ऐसे ही बाद में ब्रैकेट में -y एंड 2x की जगह +2y. तो ऐसा लिखूँ तो चलेगा, सिर्फ यहाँ पे y बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2. इज इट ओके, है ना, क्योंकि x यहाँ से कॉमन ले Yes, sir. सकते हैं, है ना, तो यहाँ से मैं x को भी कॉमन ले लेता हूँ. चलो, तो आपका कंफ्यूजन भी ना बचे, तो यहाँ पे मैंने x को यहीं पे लिख दिया, है ना, तो सेम आपका ऑर्डर रहे. एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड, अगेन e रेज टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2. ओके, अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes, sir. यस सर. है ना, मैंने बोला थोड़ा लेंदी है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. सो यहाँ पे देखो अब क्या बाकी बचा, सिर्फ इसको मुझे सब्सटीट्यूट करना बाकी बचा है ना, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई, ग्रेडियंट की फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दूंगा. अब इसके लिए एक शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो, इसको से दिस इज योर x1, ओके, दिस इज योर x2,
दिस इज योर x3। बार बार ना लिखना पड़े तो कर सकते हैं कि नहीं, है ना। Yes, sir. So the required gradient of f is del into f is equal to, first उसकी डेफिनेशन लिख दो, del f by del x I plus del f by del y j plus del f by del z k, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, x1 I प्लस x2 j plus x3 k, okay. So this is your final answer. Everybody understand? Yes, sir. Okay. और यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, और इसको नंबर दे दो, ये 1, 2 and 3. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. What about others? Please confirm yourself, everybody. No, sir. sir, no doubt. Okay. Then next example, find the unit vector normal to the surface x square plus 3y square plus 3z square is equal to 6 at point 201. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक सरफेस दे दिया है, अब उसका आपको नॉर्मल फाइंड करना है। तो दिस इज द सेकंड मेथड, है ना, सेकंड वे फॉर द आस्किंग द ग्रेडियंट। तो नॉर्मल टू द सरफेस हमने बोला था कि नॉर्मल टू द सरफेस में हमको क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट ही फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, अब दूसरा उन्होंने यहाँ पे फोकस किया है कि यूनिट चाहिए हमको, तो यूनिट उसको बाद में हम बना सकते हैं कि नहीं, है ना, अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes, sir. ओके, तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, फाई पहले डिफाइन करो, उसके बाद ग्रेड फाई फाइंड करो। स्टेप नंबर 3 होगा ग्रेड फाई एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा दिया है, 201। अब फोर्थ जो है उसको हम यूनिट बनाएंगे, तो यूनिट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल फाई डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ डेल फाई कर देंगे। ओके, कौन से पॉइंट के लिए, जो हमने फाइंड किया था उसी के लिए। ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? दिस इज द 4th स्टेप एग्जांपल। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहीं पे मैं करवा रहा हूँ, तो यू कैन से ये फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, इस 6 को यहाँ पे मूव करना है, तो -6 हो गया। ये स्टेप में कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट करेंगे कि वी नो दैट डेल फाई इज अ नॉर्मल टू द सरफेस फाई, मीन्स हमने यहाँ पे लिख दी कि जो हम नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं वो इट इज़ नथिंग बट द ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब नाउ वी गो फॉर द ग्रेडियंट ऑफ फाई, सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के। सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6 आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए, फिर से वही का वही, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6 एंड डेल बाई डेल जेड ऑफ वही का वही, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6। ओके, तो यहाँ पे वही का वही है। ओके, नाउ फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 3y स्क्वायर का 0, 2z स्क्वायर का 0, माइनस 6 का भी 0, तो सिर्फ 2x इंटू वाई, यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6y जे हो जाएगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 4z। ओके, सो 4z इंटू के हो जाएगा। So this is your del phi. Okay, everybody? Student, any doubt up to here? No, sir. Okay. No, sir. Now step number 2. Okay, step number 2 complete हो गया. Now we go for the step number 3. Del phi at 201. So del phi at 201, तो आपको x की जगह पे 2 रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गया। y की जगह पे 0 रिप्लेस करना है, तो 6 इंटू 0 हो गया, एंड 4 इंटू जेड मीन्स 4 इंटू 1 करना है, सो यहाँ पे वी हैव 2 इंटू 2 4, ये 0 4k। सो एनी प्रॉब्लम अप टू हियर?
No, sir. No, sir. Okay, and our last step is normalize it. Sorry, unit vector. Okay, so यहाँ पे क्या होगा? Therefore, the unit vector normal to the surface phi is 4i plus 4k divided by square root of 4 square plus 4 square. So यहाँ पे क्या होगा? 4i plus k. यहाँ पे 16 plus 16 32. If you solve these, then you have the 4 into root 2. And यहाँ पे 4i plus k as it is, so 4 will be cancelled out. So our final unit normal vector to the surface phi is I plus k cap divided by root 2. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? Any question, student? No, sir. Please confirm yourself, everybody. No, sir. No. No, sir. No, sir. क्योंकि इसी टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, है ना? ज़्यादातर ये यूनिट में ऐसे ही एग्जाम्पल है, तो आपको इसी टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बार बार पूछ रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट. Find the unit vector normal to the surface z square is equal to x square plus y square at point 1 0 minus 1. Okay, let's do it. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल. The statement is find the unit normal vector to the surface z square is equal to x square plus y square at point 1 0 minus 1. Okay, so यहाँ पे देखो z square is equal to x square plus y square at point 1 0 minus 1. So we want to find the unit normal vector. So we know that the normal vector is nothing but gradient. Yes or no? Student, प्लीज, है ना? क्या करना है हमको, कोई बताएगा? Are you there? सर पहले z स्क्वायर तो ही सोल्व किया है माइनस z. Okay. So x square plus y square minus z square. That is my phi. Okay. Now we want to find the normal vector. So the normal vector to the surface is क्या हो जाएगा? Grade phi. Yes or no? Yes, sir. Therefore, grade phi equal to del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. So del phi by del x इसका क्या होगा? 2x Yes, 2x I plus 2y 2yj plus minus 2z. Okay. 2z आएगा. Yes, so minus 2z k. Everybody understand up to here? Yes, sir. Yes. दूसरे लोग नहीं बोल रहे, फिर मुझे नेम से बुलाना पड़ेगा सबको. Yes, sir. ये हेता नहीं बोल रहे, करीना नहीं बोल रहे, जैमीन, Yes, sir. है ना? Yes, sir. कार्तिक. Yes, sir. Okay, चलो. Okay, so del phi, I have del phi. Now next step, then del phi at कौन से पॉइंट के लिए? I want to find the del phi at point 1 0 minus 1. So substitute x is equal to 1. So we have 2 into I plus y into y means 0. So 0 into j minus 2z. So 2 into minus 1 k. So we have 2i plus 2k. Okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Now we want to find the unit normal. So the unit
नॉर्मल वेक्टर इज, क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, या फिर इक्वल टू, ओके, इक्वल टू भी आप लिख सकते हो, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू, क्या कर देंगे सीधा, 2y प्लस 2k डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ 2y प्लस 2k, ओके। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 2i प्लस 2k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4, okay, so we can find 2i plus 2k डिवाइड बाय रूट 8, और रूट 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2√2 यस, दैट मीन्स 4 इंटू 2 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट होकर 2 आ जाएगा और रूट 2 एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे 2 विल बी कैंसिल आउट, सो वी हैव i प्लस k डिवाइड बाय रूट 2। So this is your required unit vector normal. Okay. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. No, sir. Okay. So I give you one homework. Okay. ये homework दूसरा मैं दे रहा हूँ. So try for this. If a bar is equal to this one and phi is equal to this one, then find a bar cross del phi. तो पहले आपको del phi फाइंड कर लेना है, फिर उसका a bar के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। और अगर आप पहले पॉइंट सब्सटीट्यूट करके फाइंड करेंगे तो भी चलेगा, है ना, और बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ट्राई फॉर दिस एग्जाम्पल, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ओके एवरीबॉडी? सर पहले पॉइंट रख देंगे तो नहीं होगा शायद से। हाँ, वो थोड़ा जीरो जैसा हो जाएगा, है ना, जीरो, या फिर वो डिटर्मिनेंट में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। यस सर, वैल्यू आ जाएगी तो डॉट में बाद में 0 हो जाएगा ना। हाँ, वो ट्राई तो करो क्या होता है, देखते हैं, दोनों तरीके से ट्राई करके देखो। ओके, दोनों तरीके से कर तो सकते हैं, लेकिन आंसर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा शायद। चेक इट, ओके, देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so is there any doubt, any question in today's session? नो सर। No, sir. बाकी लोग जो नहीं बोल रहे वो तो बताओ। No, sir. No, sir. No, sir.